Very much, I'm grateful to the Doctors Con, its organizers, and Feroz Hans to providing me with this opportunity to be among this learned group. SGLT2 inhibitors के बारे में शायद साहब बात कर रहे थे, तो एक स्टेज ड्रामा जो काफ़ी पहले मैंने देखा, तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था रोला। वो रोले ये कर ले तो रोले वो कर ले, तो जिस तरह स्टेज ड्रामास थिएटर्स में होती हैं जुगते वगैरह, तो एक कहता है कि इनू रोला क्यों कहते हैं, कहते जो ये जम्मिया सी तो पिंड च रोला पै गया सी, हर कोई कहता सी मेरा है। ये सर SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे भी यही गल है कि वो रोला मचिया है कि वो कहते हैं साडा है, तो कार्डियोलॉजी वाले कहते हैं साडा है, तो नेफ्रोलॉजी वाले कहते हैं साडा। तो मैं ज़्यादा रोला नहीं डालता SGLT2 पे। हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। द होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेज हाइपरटेंशन, किस तरह करें कि काफ़ी कुछ कर लें अपने मरीजों के लिए थोड़े टाइम में, उनके ब्लड प्रेशर्स के साथ जितना अच्छा बिहेव कर लें हम, उनको जितना हेल्प आउट कर सकें। तो थोड़ा सा कोशिश की है इसमें। मैंने कुछ बेसिक पैथोफिजियोलॉजी भी, आप सब लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छी आती हैं, तो जस्ट क्विक रिकैप उसका मैंने देने की कोशिश की है। मैकेनिज्म्स को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं कि हम, वही बात है कि थोड़े में ज़्यादा कुछ कर लें। My name is Professor Dr. Junaid Zafar. I am a professor of cardiology and head of department at Sir Gangaram Hospital. Today's session, this segment of session is, I've been invited on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians by Feroz Hans. Some of the academic content in these slides and slide set is provided by Feroz Hans, and there is no financial disclaimer to disclose to you people. Hypertension is nothing but the presence of blood pressure elevations. ये बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत मुझे कंसाइज डेफिनेशन एक कहीं से मिली, तो मुझे पसंद आई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। The presence of a blood pressure elevations to a level that places patients at increased risk for target organ damage in several vascular beds including retina, heart, brain, kidneys and large coronary arteries. तो ये एक बड़ी अच्छी कंसाइज डेफिनेशन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हेन वी रीड अबाउट हाइपरटेंशन तो वहाँ पे टारगेट्स और कट ऑफ वैल्यूज हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक प्रिसाइज डेफिनेशन कई जगह पर नहीं मिलती। तो आई फाउंड इट अ ब्यूटीफुल थिंग टू शेयर विद यू पीपल। एज फार एज द प्रेवलेंस इन पाकिस्तान इज कंसर्न, इट्स द 11th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हियर, and unfortunately 70% of the people here are not aware of the disease. Male and female population are equally being hit by the disease. Same is for the global canvas of hypertension. There has been a drastic increase in hypertension prevalence, especially in the Asia Pacific region. Even the Europeans are not spared, but the blast is to a lower extent in these countries as in comparison with the Asia Pacific region. So 41% increase in hypertension over the past 20 to 25 years in the European region and the Americas, in comparison with 144% increase in Southeast Asia and Western Pacific region. So it's not basically only the diabetes which is an epidemic, it's the hypertension as well. The national SNAP of hypertension prevalence in Pakistan is drastically increasing. The studies have shown that somehow the Balochi ethnicity and the Pashtuns are more prone to have hypertensive readings in comparison with the Punjabis and Sindhis. These all are modifiable risk factors for hypertension control. We all know them. Excessive body weight, excessive salt intake, inadequate exercise, excessive drinking, smoking and mental stress. Symptoms, silent killer, but at times you may have some prodromal symptoms which can be alarming and which will let you guide to the to seek a medical help. So severe headaches, visual problems, difficulty in breathing, fatigue, chest pain related to angina, with maybe a non-specific chest pain as well, and palpitations leading to atrial fibrillation or other rhythm abnormalities, and at times hematuria. The pressure ladder, stages of hypertension. The normal is less than 20, just a quick recap. The normal systolic is less than 120 and the diastolic is less than 80. Elevated are 120, 129,
but the diastolic is less than 80. For stage 1 hypertension or high blood pressures, the 130 to 139 is cut off, and diastolic is less than 90. The high blood pressure stage 2 hypertension is 140 or higher, and the diastolic is 90 or higher, and hypertensive crisis includes anything beyond 180 millimeter of mercury systolic and 120 millimeter of mercury diastolic. And the consequences of high blood pressures almost invariably involves involves the majority of the organs. तो वो जो कुकड़ी वाली स्लाइड में सर आप मुझे अभी कह रहे थे कि वो उसको यकीन डायबिटीज नहीं होगी, उसको हाइपरटेंशन भी नहीं होगी. तो it involves the neurological system, causes strokes, heart failure, visual abnormalities, heart attacks, kidney diseases, and sexual dysfunctions in both genders. Basic pathophysiology, different organs. It was again a beautiful slide for a quick pathophysiological recap. The antidiuretic hormone physiology leading to sodium water retention, increased blood pressure, and increased preload leading to increased cardiac output and high blood pressure. On the other hand, it will lead to vasoconstriction, increased total peripheral vascular resistance, increased blood pressures. The aldosterone-renin axis, well known, well studied, again will lead to sodium and water retention as well as to vasoconstriction and leading to its consequences. Angiotensin II, the same axis. The norepinephrine, autonomic basically, this is the autonomic system. So more norepinephrine, sympathetic nervous system activation, again will lead to increased heart rate, vasoconstriction, and all that. The basic concept is, the basic concept of this slide is to give you a quick recap of pathophysiology. So basically, the cardiac output is stroke volume multiplied by heart rate. The cardiac output is stroke volume multiplied by heart rate, and the stroke volume is diastolic minus systolic, and diastolic minus end systolic volumes. This basic equation, I thought I could have a pointer here, there. ये कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम. ये इक्वेशन स्टडी करना, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन वी शुड नॉट बी ट्रीटिंग ऑन सिंगल एक्सिस. हमने जो कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, हमारी प्रेफरेंस हमारी ये होनी चाहिए कि वी शुड बी वर्किंग ऑन मोर देन वन मैकेनिज्म्स. तो ये तीन बेसिक मैकेनिज्म्स हैं. इसमें हार्ट रेट है, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम है. तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जो हार्ट रेट को भी एड्रेस करे, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी करे और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी, so that we can gain maximum benefit out of our treatment. The path from hypertension to heart failure and the path from hypertension to stroke. हाइपरटेंशन से हार्ट फेलियर की तरफ कार्डियक मास इंक्रीज करेगा, आर्टेरियल स्टिफनेस इंक्रीज करेगी. दिस विल लीड टू लेफ्ट एट्रियल डिसफंक्शन and as well as left ventricular hypertrophy, which will lead to heart failure with preserved ejection fraction. And when ultimately the myocardium will exhaust and there will be burnt out hypertensive heart disease, you can have hypertension with reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction. And the pathway from hypertension to stroke, hypertension will lead to inflammation, increased oxidative stress, cell death, and blood-brain permeability abnormality, blood vessel hypertrophy. This all will lead to vasoconstriction gradually, atherosclerosis, intimal narrowing, and will lead to hypertension. This hypertension in the cerebral vascular beds will lead to intracranial hemorrhages. It will lead to strokes and will lead to early onset of vascular dementia. Evolution of antihypertensive drugs. 1940s में इनिशली ब्लड प्रेशर की ड्रग्स जो है वो हुई थी. अब हम ये तो बुक्स की हद तक ज़्यादातर रह चुकी हुई हैं. पेरिफेरल सिम्पैथोलिटिक्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स. हमारे टीचर्स मौजूद हैं, जफ़र साहब, आरिफ सिद्दीकी साहब, शायद सर ने यूज़ की हों, आजकल तो हमारे इस्तेमाल में नहीं है. 1950s में वेजोडाइलेटर्स आए, माइनॉक्सिडिल टाइप की चीज़ें. फिर ग्रेजुअली थैंक्स टू द साइंस दैट थायराइड डायरेटिक्स वर देयर, फॉलोड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ACE inhibitors, and angiotensin receptor blockers. So there has been an evolution of the drugs. Antihypertensive drugs classes and their basic mechanisms.
ACE inhibitors, ARBs ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ये स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करेंगे. अल्फा ब्लॉकर जो है वो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेंगे. बीटा ब्लॉकर जो है वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को कम करेंगे. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अल्फा ब्लॉकर्स होंगे, स्ट्रोक सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेंगे. एंड डायूरेटिक्स विल लीड टू स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. तो ये बेसिकली ये वो मैकेनिज्म्स है जो मैं पिछली स्लाइड में हाईलाइट करना चाह रहा था कि हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमने इस कॉम्बिनेशन के साथ प्ले करना है और हमने इन डिफरेंट फिजियोलॉजीज को टारगेट करना है. तो अगर आपकी दो दवाइयां ऐसी चल रही हैं जो एक ही मैकेनिज्म पे काम कर रही हैं तो शायद आप वो फायदा ना हासिल कर सकें जो दो डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करने वाली दवाइयां होंगी. तो ऑलवेज बी पर्टिकुलर टू चूज योर कॉम्बिनेशंस. रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग क्लासेस टू बी यूज्ड, द रोड टू होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट गाइड. तो फॉर एडल्ट्स विद हाइपरटेंशन रिक्वायरिंग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, WHO की रिकमेंडेशन ये है कि यू कैन चूज एनी ऑफ थायराइड और थायराइड लाइक एजेंट्स, ACE or ARBs and long-acting dihydropyridines, calcium channel blockers. These have the strong recommendation and have the maximum certainty. JNC8 algorithm थे. JNC8 किसी हद तक थोड़ा सा disputed algorithm था ये, but still it's applicable since there is no JNC9 so far. तो हम अभी भी इसी को फॉलो कर रहे हैं. इसमें JNC8 में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें से टेक होम मैसेजेस मिले थे, वो एक तो ये बॉक्स की तरफ आप नजर रखेंगे और दूसरा इस बॉक्स की तरफ नजर रखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दीज कट ऑफ वैल्यूज, तो इफ एज इज 60 और बियॉन्ड तो आपका कट ऑफ वैल्यू लेस देन 150 और 90 होगा. एज लेस देन 60 है या आप डायबिटिक हैं या आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन तीनों में टारगेट्स एक जैसे हैं, वो दैट इज 140/90, लेस देन 140/90. तो इस एल्गोरिथम में काम की चीज ज्यादा यही है कि अगर आपका टारगेट आपकी एज 60 से बियॉन्ड है तो टारगेट आपका थोड़ा सा रिलैक्स है, लेस देन 150/90. लेकिन अगर आपकी एज लेस देन 60 है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो टारगेट थोड़ा सा टाइट होगा. और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट ये इस बॉक्स पे तवज्जो रखिए कि स्ट्रेटजीज क्या होंगी जब आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसमें 3 स्ट्रेटजीज यूज हो सकती हैं. एक तो ये कि आप एक ड्रग स्टार्ट कर लें, उसको मैक्सिमम डोज पर ले जाएं और उसके बाद आपको अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो यू एड ऑन द सेकंड ड्रग. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यू स्टार्ट विद वन ड्रग and you keep on titrating up and without reaching the maximum dose you institute a third drug. और उसके बाद ये है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों ड्रग्स इकट्ठी शुरू करवा दें. तो वो सारे पेशेंट्स आपके जिनके जो टारगेट कट ऑफ वैल्यूज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होंगी या जिनकी डायस्टोलिक रीडिंग मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होंगी, तो क्लास 1 रिकमेंडेशन जो EAC गाइडलाइंस की लेटेस्ट है उसमें यू कैन गो विद 2 ड्रग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नाइस गाइडलाइंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई जाती भी नहीं है, अभी भी बार पढ़ाई जाती हैं, स्टिल वेल स्टडीड. अगर तो डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ है, तो स्टेप 1 ट्रीटमेंट जो होगा वो ACE और ARBs होंगी. स्टेप 1 ट्रीटमेंट विल बी ACE और ARBs. इट्स अ कंपेलिंग इंडिकेशन. अगर डायबिटीज़ नहीं है लेकिन एज लेस देन 50 ईयर्स होगी या ब्लैक अफ्रीकन रेस में से हैं, तो उसमें यू कैन गो विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज स्टेप 1 ट्रीटमेंट. स्टेप 2 ट्रीटमेंट पे ये है कि अगर आपको एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज ड्रग्स. स्टेप 3 में यू विल हैव टू ऐड a third drug which may be preferably a thiazide or thiazide like diuretic. And step 4, if there is no response, then you will add additional diuretics, especially spironolactone, or you will consider those drugs which are not in routine use like alpha blockers and beta blockers. EAC गाइडलाइंस 2024 की हैं. इनिशियली इन गाइडलाइंस का क्रक्स जो है वो ये है कि अगर आपका पेशेंट फ्रेल एज ग्रुप में है, 85 इयर्स या उससे ज़्यादा है, ओवरऑल उसकी हेल्थ का स्टेटस पुअर है, मॉडरेट टू सीवियर फ्रेलिटी है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि मॉडरेट टू सीवियर फ्रेलिटी है, या पेशेंट को ऑलरेडी सिम्टोमेटिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है किसी वजह से, उसको मतलब कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो यू बेटर स्टार्ट विद मोनोथेरेपी इन दीज पेशेंट्स. इन लोगों में आप मोनोथेरेपी से स्टार्ट करें. अगर ये सब कुछ नहीं है और आपका पेशेंट जो है वो एक गुड एज ग्रुप में है और ब्लड प्रेशर भी अगेन उसके मतलब है कि कुछ स्टेज 2 हाइपरटेंशन में है या उससे ज़्यादा है, तो यू कैन गो विद 2 ड्रग्स.
उसमें यू कैन गो विद 2 ड्रग्स, लो डोज डबल कॉम्बिनेशन थेरेपी में दें, उसको फॉलो करें फॉर 1 to 3 months, और अगर टारगेट पर नहीं आया तो फिर आप ट्रिपल कॉम्बिनेशन पर चले जाइए, लो डोज ट्रिपल कॉम्बिनेशन पे। अगर फिर 3 महीने के फॉलोअप पे वो ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं आया तो आप मैक्सिमम डोज पे 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन पर चले जाइए, और उसके बाद आप फिर उसको अगर नहीं होगा तो स्पाइनोलेक्टोन ऐड करें, और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल करके यू कैन कंसीडर फॉर फर्दर रेफरल्स टू स्पेशलिस्ट। ये स्लाइड हमें कंपेलिंग इंडिकेशंस और काउंटर इंडिकेशंस पर बता रही है बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स के कॉम्बिनेशन पे। तो क्रॉनिक कॉर्नी सिंड्रोम्स में बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स compelling indication, hypertension with high heart rate, again compelling indication, beta blocker ACE, it will be reasonable combination. अगर recently myocardial infarction हुई है तो beta blocker और ACE, अगर atrial fibrillation है तो beta blocker और ACE, और अगर heart failure है तो beta blocker और ACE, given all the benefits achieved by these drugs in prevention of secondary atrial fibrillation and all that. Complex slide, again compelling indication and contraindication. कॉर्नी आर्टरी डिजीज होगी तो बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स देंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बीटा ब्लॉकर एस इनहिबिटर्स देंगे, हार्ट फेलियर होगी तो एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स देंगे, अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगी या डायबिटीज होगी तो एस इनहिबिटर्स और एआरबीज देंगे इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और स्पाइनोलेक्टोन। ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि बेशक हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है या हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है तो यू कैन गो विद ACE ARBs in combination with beta blocker loop diuretics. Keep on up titrating the drugs, add on further drugs, especially the SGLT2 inhibitors, and you can achieve the maximum benefits in your patients. Holistic approach, single pill combination, ESC की guidelines जो latest हैं 2024 की, उसमें combination therapy को class 1 indication रखा गया है. So initial therapy, dual combination, first pill, or even triple combination in one pill, it's preferable in comparison to split treatment. Multiple antihypertensive agents, hypertensive patients 23 to 54% in all these 4 trials, ये जो landmark trials हैं, LHART trial, INVEST trial, Accomplish और LIFE trial में, उनमें उन्होंने देखा कि हमारे 54% तक जो patients थे उनमें हमें multiple drugs की ज़रूरत पड़ रही थी, और जब उन्होंने single pill combination, single pills दिए तो compliance dropped significantly, इसलिए इनमें ESC की guidelines में ये advocate किया गया कि आप single pill combination पर रखें। डिफरेंट रिसर्चेज हैं जो मैं ये बता रही हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में। एमलोडिपिन, वेल्सार्टन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को कंपेयर किया गया है फुल डोज में वेल्सार्टन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से, एमलोडिपिन वेल्सार्टन से और एमलोडिपिन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको मिलता है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिलती है, विच एडुकेट्स अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी इन सिंगल पिल। सेम स्लाइड, रियल वर्ल्ड डाटा, triple combination in comparison with the double combination therapy in different age groups and populations. Again, significant reduction in systolic and diastolic blood pressures. Same repetition of the slides. Again, triple combination की same slide है. Amlodipine, valsartan, hydrochlorothiazide, triple combination therapy in moderate to severe hypertension. The data is favoring the amlodipine 10 mg, valsartan 320 mg, and hydrochlorothiazide 25 mg triple therapy is highly effective in reducing blood pressure in comparison with dual components early in therapy. Same repetition in diagrammatic pictures. अच्छा, ये एक important slide है, इस पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट सिर्फ दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी का अकॉर्डिंग टू एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो वाइल चूजिंग योर ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन थेरेपी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका बीपी मॉर्निंग में और है और इवनिंग में और है, और हमारे लिए कई दफ़ा प्रॉब्लम बनता है कि इनमें हम, तो आपने ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी को ज़हन में रखना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लॉन्गर एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, लॉन्गर एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उनके साथ ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी कम है इन कंपैरिजन विद शॉर्टर एक्टिंग। तो जो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स हैं उनमें टेलमिसार्टेन, ऑलमिसार्टेन, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में वेल्सार्टेन, शॉर्ट एक्टिंग में लोसार्टेन, ये एआरबीज हैं जो कन्वेंशनली ट्राई होते हैं। तो लोसार्टेन के साथ ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमें उसको ट्वाइस डेली डोज पर रखना पड़ेगा। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनमें नाफेडिपिन और लर्किनेडिपिन, ये शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, इनके साथ ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद द एमलोडिपिन विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग। तो ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए आपने वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जो एटलीस्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग हो,
क्योंकि ये वही पेशेंट्स होंगे जो रिवर्स डिपर्स के होंगे, जिनमें रात को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपने मॉर्निंग में डोज दी तो नाइट टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और या जिनको रिवर्स डिपर्स होंगे या नॉन डिपर्स होंगे, और इन लोगों में मोर्टेलिटी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगी. तो टू cater these population you have to choose drugs which have low blood pressure variability. Amlodipine is one of them. ESC guidelines, again talking about the target blood pressures, ये स्लाइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे डिटेल्स में आ चुकी हुई है. ये आखिरी स्लाइड है हमारी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपने साथ ही ध्यान में रखना है, सिर्फ दवाइयों पर जोर नहीं रखना. तो एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए एडवोकेट करें और डेली फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें. आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज के लिए इनको इनकरेज करें. पोटेशियम लेवल अपनी डाइट में अच्छा रखें, अगर किडनीज आपके अलाउ करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्टिमाइज वेट मैनेजमेंट, रिड्यूस टेबल सॉल्ट इनटेक, reduce alcohol consumption and no smoking. Thank you very much.